हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। साल अभी बचा है लेकिन फुटबॉल के लिए अब साल ख़त्म हो गया है। बार्सिलोना हैज़ फिनिश्ड टॉप ऑफ द टेबल एंड अब अगला मैच 4 जनवरी को है आई गेस एस्पानियोल के अगेंस्ट। बहुत सारे पॉजिटिव्स बहुत सारे नेगेटिव्स रहे बार्सिलोना के लिए। सो वी वुड बी डिस्कसिंग इन डिटेल कि क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। पॉजिटिव्स सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे को जो लगा बार्सिलोना के लिए साइन वाज द साइनिंग ऑफ द गोलकीपर। दे रियली नीडेड दैट। टर स्टेगन इज गेटिंग ओल्ड। वोइचेक शेज़नी कुड हैव बीन द रिप्लेसमेंट लेकिन समय नहीं है उतना। सो जोआन गार्सिया मैन, ही इज हिम। He can save anything, and I think now he is ready even to start for uh, Spain as well. I was comparing the stats of Joan Garcia, Thibaut Courtois, and David Raya. I put it up in the video as well. So you see that uh, both of them are equally well. David Raya and Joan Garcia. Of course, Joan Garcia was injured for some time, and so he played less minutes than Thibaut Courtois and David Raya. But his aerial duels, he is incredible in air duels, and his interceptions are incredible, 100%. So that is something, and I think with David Raya aging fast, he is 6 years younger than him, so he is ready to start for Spain as well. And if Barcelona keeps him, they have sorted their goalkeeping positions for next 10 years maybe. He is good in 1v1s, in penalty, and like how Barcelona plays, they build from the back, right? It has been in their DNA. They build from the back, and this guy is incredible in building from the back. The passes even his long passes are incredible, and he is incredible in building from the back. So this guy is proper Barca DNA. Of course, we need to protect him against Espanyol. So then comes the second positive I'd be going with: goal scoring rate. Barcelona. I was reading somewhere that Barcelona scored 169 goals across 60 matches in 2025. We have already scored 51 goals against teams in La Liga this season. Then the best thing about this season is that we have different goal scorers. We do not depend only on Rafinha, only on Leva. We have different goal scorers. You see, Ferran Torres है, Rafinha है, Lamine Yamal है, Lewandowski comes from the bench and scores. Fermin Lopez ने score कर रखा है. So that is a good thing. And we do not follow this pattern only in La Liga, but also in UCL as well. And we now need to focus on UCL because the games would be coming thick and fast, and there might be injury concerns. So we need to focus on UCL. And then comes the third positive, which I take from this season, this whole year, the last season including, is how our players have evolved. Players' mentality has improved across this season. I started watching from the first game of La Liga or from Joan Gamper Trophy even as well. I watched Joan Gamper Trophy's final as well. Against Como it was. लेकिन उस समय प्लेयर्स की मेंटलिटी दिखाई नहीं दे रही थी. Kunde was playing absurdly bad. Sorry. But even now, I see Kunde sometimes very aggressive, but other time he's like, I don't want to play. In the last game as well, I think we had injury concern about him. लेकिन हम लोगों के प्लेयर्स की मेंटलिटी इवॉल्व हुई. मेरे को लगा पहले कि शायद
लास्ट सीजन डोमेस्टिक ट्रेबल जीतने के बाद उन लोगों को थोड़ा लगा कि लेट्स गेट रिलैक्स्ड एंड ऑल, लेकिन फिर मे बी फ्लिक चेंज समथिंग, स्कोल्डेड देम, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन प्लेयर्स की मेंटेलिटी इवॉल्व हुई है अक्रॉस दिस सीजन. They are again playing to win every game, and not only they focus on winning the game but also destroying the opposition. Then और आपको ये मेंटेलिटी दिखाई देती भी है प्लेयर्स में. When they high press the other team, बॉल पोजेशन बहुत जल्दी वापस रख लेते हैं और बहुत देर तक रखते हैं बॉल पोजेशन, एंड नॉट ओनली प्लेइंग हॉरिजॉन्टली but also playing passing vertically as well. They keep the ball possession, and फिर आपको दिखता है कि भाई वो इंटरसेप्शन इतनी जल्दी कर रहे हैं, अगर अपोजिशन के पास बॉल है तो बॉल बहुत जल्दी विन कर रहे हैं. ये सबसे आपको पता लगता है कि दे आर प्लेइंग विद सम मेंटेलिटी, प्लेइंग टू विन एटसेट्रा. Then you need to talk about the fourth positive I found in the Barca team is the individual performances. Man, this season we have found some incredible individual bowlers. जोआन गार्सिया के बारे में बात कर चुका हूँ. We need to talk about the uprising of Gerard Maldini. Man, Gerard Martin has evolved, has come a long way. From being the left back to being the centre back, he has improved his progressive passing. He has improved his progressive ball carrying ability. एयर डुअल्स में भी बंदा अच्छा हो गया है, ग्राउंड डुअल्स में बंदा अच्छा हो गया है, इंटरसेप्शंस बंदा अच्छा करता है. ऑफ कोर्स अगर आप जाएंगे, मैं यहाँ पे वो लगा दूंगा कंपैरिजन, मैंने भी खोल रखा है. सो क्रॉसेस ऑफ कोर्स कम डलेंगे क्योंकि बंदा आउटवर्ड ड्रिफ्ट नहीं करता है, पीछे अपनी पोजीशन होल्ड करता है विद पॉक बारसी. लेफ्ट फुटेड है, ये बहुत अच्छी बात है. ऑफ कोर्स वी नीड सम वन न्यू वर्ल्ड क्लास लेवल बिकॉज UCL विल बी our main focus this season, but he is holding his position for now really well. of course बंदे के पास स्पीड बहुत नहीं है, ट्रैक बैक बहुत अच्छा नहीं करता है, रिकवरी पेस अच्छी नहीं है, लेकिन एयर डुअल्स में बंदा बहुत सॉलिड है. हाइट की वजह से एयर डुअल्स में बंदा बहुत सॉलिड है, और प्रोग्रेसिव पासिंग बंदे की अच्छी है. लाइन ब्रेकिंग पासेस आई सी हिम प्लेइंग, एंड प्रोग्रेसिव पासिंग बंदे की अच्छी है. इंटरसेप्शंस बंदा बहुत टाइम्ड इंटरसेप्शंस करता है, समटाइम्स रिमाइंड्स मी ऑफ इनिगो. लेकिन हाँ, ही इज़ गुड. तो एक इस बंदे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हैज जस्ट ब्लोन माय माइंड. देन कम्स आवर ओन इनिएस्टा चावी मिक्स, Pedri. Of course another solid season so far from Pedri, our magician, our Pedri Potter. We need to talk about Frankie as well, जो दोनों डबल पिवट में जब साथ में खेलते हैं, they are incredible. We saw it against Newcastle, a Premier League team who loves to play long, have monsters in midfield and attack. Holding and keeping ball against them is a difficult task. They play very physical. All Premier League teams. Of course, we missed him against Chelsea, and we felt that 3-0 win, Araujo's mistake, of course. Then, of course, like Gerard Martin, we need to talk about Eric Garcia as well. Man, आप उसको राइट बैक खिलाओ, आप उसको सेंटर बैक खिलाओ, आप उसको CDM खिलाओ, डबल पिवट में खिलाओ, सिंगल पिवट में, ही डजंट केयर. वो बंदा बहुत सॉलिड है, बहुत, मतलब एवरी पोजीशन. बंदे के पास पेस नहीं है, लेकिन बंदे के पास दिमाग बहुत है, बहुत टाइम्ड टैकल्स करता है, विंस पोजेशन, डिसरप्टिव प्ले बंदे का बहुत अच्छा है. मिडफील्ड में ही इज मतलब ब्यूटिफुल टू वॉच. फ्रैंकी, पेद्री, गावी, किसी के भी साथ खिलाओ, कसाडो, बर्नाल, बंदा अपनी पोजीशन बहुत अच्छे से होल्ड करता है. बंदे को पता है मेरे को कहाँ पे कब प्रेजेंट रहना है. इवन इफ यू प्ले हिम सेंटर बैक, राइट बैक में भी उसको पेस चाहिए, लेकिन ही डजंट हैव पेस, सो ही यूजेस हिज मेंटल एबिलिटी टू फाइंड आउट वेयर ही नीड्स टू बी ऑन द पिच. बंदे का प्रोग्रेसिव पासिंग अच्छी है, कंबाइन बहुत अच्छे से करता है अदर प्लेयर्स के साथ. ही इज़ ब्यूटीफुल टू वॉच. अगेन
The fifth positive for this year, I would say we finished top of the table again. We finished top of the table, so that puts pressure on number two, Real Madrid, because I guess they already won the league in November or October. But again, yes, it's good to finish top of the table at the end of the season. उनके ऊपर प्रेशर आएगा, हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव इज कि हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं यूसीएल की तरफ. वी कैन शिफ्ट आवर फोकस बिकॉज हमारे यूसीएल में टफ गेम्स नहीं बचे हैं. वी कैन एम टू फिनिश टॉप 8 अगेन. तो टॉप पे फिनिश करना इज़ अ गुड थिंग. प्रेशर आरएमए पे रहेगा, आप मोर फोकस कर सकते हैं और आपको एक अलग मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ये चीज़ कि भाई ठीक है, हम लोग टॉप ऑफ द टेबल हैं. अब हम लोग एक गेम अगर लूज भी करते हैं, ड्रॉ भी करते हैं, तो वी डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट. और अभी गेम्स थिक एंड फास्ट आएंगी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो उसके लिए आपको मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, वी आर वन गेम अहेड ऑफ आवर आर्च राइवल्स एंड द सेकंड नंबर. नाउ कम्स द नेगेटिव्स ऑफ दिस सीजन. सी मेरे को 3 मेन नेगेटिव्स लगे. पहला है कि वी नीड टू इम्प्रूव आवर बेंच स्ट्रेंथ. सेकेंडली, वी नीड सम वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स. एंड थर्ड, आवर डिपेंडेंस ऑन हाई लाइन इज स्टिल विजिबल. एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं इन सब चीज़ों को. सबसे पहले ले लेते हैं कि भाई हमारे पास अभी कोई प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है. ऑफकोर्स नो ऑफेंस टू फेरन टोरेस और लेवेंडोव्स्की, लेकिन सी लेवेंडोव्स्की इज एजिंग एंड ही इज एजिंग रियली फास्ट. वी कैन सी इट. पूरे सीजन बंदा इस साल, मतलब इस सीजन ऑलमोस्ट हाफ अ सीजन ही वॉज नॉट अवेलेबल. ऑफकोर्स इंजरी इशूज, सी ही इज एजिंग, दैट इज ओके, ठीक है. लेकिन क्या हम लोग एक सीज़न और अफोर्ड कर सकते हैं उसको? आई डोंट थिंक. अगर आपको अच्छे कॉम्पिटिशन्स में अगर इवन अपनी एक वो पेश भी करनी है, आपको एक कंपटीशन में जाना है, आपको ये दिखाना है कि यस वी आर कॉम्पिटिटर्स, तो यू नीड सम वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर टू फिनिश दोज चांसेस. वन अगेंस्ट चेल्सी वी मिस्ड फेरन की वजह से. उसकी वजह से उन पर प्रेशर आ जाता मे बी. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग गेम जीत जाते, लेकिन दूसरी टीम प्रेशर में आ जाती है, ठीक है. तो we need Ferran Torres. See, he is good for La Liga, but for European competitions, is he someone to be trusted on? See, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि no. Of course, he is the shark and all that, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, he doesn't step up. बंदे की प्रेसिंग, ये वो. व्हेन यू सी किलियन एम्बापे स्कोरिंग गोल्स फॉर आरएमए, व्हेन यू सी अर्लिंग हालैंड हैविंग अ इनक्रेडिबल सीजन फॉर मैनचेस्टर सिटी, व्हेन यू सी हैरी केन हैविंग एन इनक्रेडिबल सीजन फॉर बायर्न म्यूनिख, यू थिंक दैट यू नीड समवन ऑफ दैट क्वालिटी टू. लेवा हो ही रहा है, एज हो रहा है. सो येस, वी नीड अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर. दैट इज़ अ नेगेटिव आई टेक फ्रॉम दिस सीजन, क्योंकि हम लोग फिर से एक साइनिंग नहीं कर पाए एक भी प्रॉपर स्ट्राइकर की. सेकेंडली, वी नीड बेंच स्ट्रेंथ. मैन, हमारे पास आई गेस राइट बैक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. जब कुंडे को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एरिक गार्सिया शिफ्ट ऑन द राइट बैक. हमारे पास सेंटर मिड्स में, प्रॉपर सेंटर मिड्स, नोट CDMs, फरमिन है. जब फरमिन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कैम डानी ओल्मो ज़्यादातर इंजर्ड रहता है. हम लोग को राफिनिया को नंबर 10 शिफ्ट करना था, विच इज़ गुड ऑफ कोर्स. राफिनिया का वो जो हाई प्रेस है, दैट इज़ गुड फॉर अस. अगेन वी नीड सम सेंटर बैक्स. what I would say कि see Gerard Martin did have an incredible season, at least this far, लेकिन हम लोग को सेंटर बैक में एक मतलब इम्प्रूवमेंट करना है. we need some new signings. we do need, and मतलब निको श्लॉटरबैक, मार्क गियही एंड ये सब हम लोगों से ऑफ कोर्स लिंक्ड हैं. लेकिन एलेसांद्रो बास्तोनी, अगेन ही सेड दैट ही इज़ नॉट लीविंग इंटर. कि क्या हम लोग उतनी साइनिंग अफोर्ड कर सकते हैं? आई डोंट थिंक. एलेसांद्रो बास्टोनी, निको श्लॉटरबैक, ये सब लोग हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सी, वी नीड टू बी प्रैक्टिकल एंड all that. Mark Gehi, we can afford him, and he is something we should go for when the January transfer window opens.
लेकिन वी नीड सम न्यू साइनिंग्स, वी नीड सम बेंच स्ट्रेंथ, नीड टू इम्प्रूव इट। फिर तीसरा ड्रॉबैक और नेगेटिव जो मैं इस सीज़न से लेकर के जाऊंगा कि यार डिपेंडेंस ऑन हाई लाइन। सी मैन, इट वॉज स्टिल विजिबल, वी कुड सी प्लेयर्स गेटिंग हर्ट बिकॉज ऑफ इट। हम लोगों की हाई लाइन पे डिपेंडेंस इतनी हो जाती है कि हम लोग भूल जाते हैं कि वी नीड टू डिफेंड, राइट। हैपेंड अगेंस्ट PSG, हैपेंड अगेंस्ट सेविया, और सेविया ने तो हम लोग को तोड़ा था। जब एक मिड टेबल टीम आकर के आप लोगों के अगेंस्ट, जब आप टेबल टॉप पे हो या सेकंड नंबर पे हो, आकर के आप लोगों के अगेंस्ट 4 गोल मार दे रही है, और मतलब प्री मैच कॉन्फ्रेंस में उनका कोच बोल के जा रहा है ये बात कि वी हैव अ प्लान टू प्ले अगेंस्ट योर टीम एंड टू बीट बारसा, दैट इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन, बिकॉज उनके पास प्लान था। मतलब दैट थर्ड मैन रन एंड गेटिंग इट राइट एवरी टाइम, 4 टाइम्स। मतलब हम लोगों के अगेंस्ट वो और बुरी विन हो सकती थी, 7-1, 7-2, 8। मतलब उन लोगों ने 4 चांसेस आई गेस मिस भी किए हैं। तो मतलब एक प्रॉपर डिस्ट्रक्शन हो सकता था बार्सिलोना का वो। देन इट हैपेंड अगेंस्ट PSG कि हम लोगों ने फिर वही किया, गंदी डिफेंडिंग। लास्ट मिनट पे आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जो समझ में आ रहा है कि वी कैन नॉट विन द गेम, तो आप लोग ड्रॉ रखिए भाई, ठीक है। मतलब दे कुड हैव ड्रॉन द गेम। अगेन वही चीज़ हम लोगों को दोबारा हर्ट की कि भाई हाई लाइन खेलेंगे, प्लेयर्स कुडंट कोप अप, और वो हाई लाइन के चक्कर में हम लोग के प्लेयर्स पहले से जो एग्जॉस्टेड थे, मतलब उन पे दिख रहा था, उनका फैटीग दिख रहा था, एंड इट अगेन डिड हर्ट अस। Against Villarreal happened as well, yesterday's game. It happened against Villarreal as well, that उन लोगों ने कितनी आसानी से वो पहले का जो 1.5 मिनट का गेम हुआ था आई गेस, और 1.5 मिनट में ही उन्होंने हमारा ऑफ साइड ट्रैप बीट करा के सब काउंटर अटैक पे दे ऑलमोस्ट हर्ट अस। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल। लेकिन बाकी सीज़न अभी तक ठीक जा रहा है। UCL पे थोड़ा और फोकस हम लोग करेंगे तो वी कुड इम्प्रूव। एंड yes, these are the positives and negatives I take from 2025 for Barcelona. Tell me in the comments on what topic would you love to watch the video. I think I did not miss anything. You can share your comments. Thank you guys. Bye.